friends, and today we will discuss what I think you have understood what we have to learn today. What we have to learn today, I think you have understood. So we are going to teach some special things. Equations of linear motion and rotational motion. I have written that linear motion. What is linear motion and rotational motion? So we have discussed earlier about the linear motion and rotational motion. I think moving of straws on spoon plate, moving of a ball on a fingertip, moving on belly dance is also an example of rotational motion. So children, linear motion, rotational motions की कुछ algebraic expression पाने के लिए first we have to discuss about the Newtonian equation. What was the Newtonian equation? Newtonian equation where जब हम एवरेज ले रहे थे तो मोशन पहले बात कर रहे थे डिस्कस अबाउट द लीनियर मोशन. Linear motion means body starting from one place and reaching to one place, cover and state distance, displacement. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाती है कोई बॉडी. याद रखिएगा, लीनियर का मतलब सीधा जाना, स्ट्रेट जाना, रुकना नहीं. ठीक है, और मतलब we have रुकना नहीं, we have to change the directions. If we will change the direction each time, it will become solar motion or circular motion. So remember children, we have to discuss only about the linear motion. Linear motion में if velocity is u and final velocity is v, आप जानते थे, याद करिए. What was its average velocity? Average velocity will be u plus v divided by 2 because number of velocity, sum of the velocity divided by number of velocity. So we have only two number of velocity, u and v. So we will divide by 2. If it will be 3, we will divide by 3. If it will be 4, divided by 4. So similar like this, these are the average velocity which we have learned in class 9. अच्छा, अब आगे बात करते हैं. After that, we got formula. And what was the linear formula? Angular acceleration is equal to change in velocity. Change in velocity upon time. बहुत पहले आप पढ़ते हैं. Final velocity क्या है? Right here v. Initial velocity u divided by t. We will get a. We are studying first linear motion children. इसी तरह से अब कहते कि we have got, similarly we will find another formula. Modified form of this one is what? A into t बराबर v minus u, or we will write here a u plus directly we will write here u plus at is equal to v. It was the original formula which was the very famous formula which I have done, I think. अब similarly we will find another formula that is s is equal to ut plus half at square in the case of linear motion. And what was another formula? V square is equal to u square plus 2as, where a is the what? Acceleration. And the last one formula which we have learnt in class 9th, and that we distance of traveled by body is nth second. Distance traveled by body is nth second, and that was u plus 2n plus 1 into a by 2. We will write like this. A small a. A is what? Acceleration. So these were the formula which we are using in rotational motion. एक मजेदार बात बता. Rotational motion is a special case of linear motion. Rotational motion is a special case of linear motion. मतलब है linear motion may be rotational motion,
but each rotational motion cannot be linear motion. So remember कि बॉस जो है ना, बड़ा जो है वो linear motion ही है, दिमाग में रखो, remember it. अब कह रहे हैं कि हमें तो सर ये तो चीजें हम बहुत बचपन में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्कस. But the basic of these rotational motion is inside in that linear motion. That's why we have discussed about it. ये जो भी फार्मूले हैं, we are getting these formula. All these formula is in accelerated motion. ये सारे फार्मूले accelerated, जब तक motion accelerated ना हो तब तक ये फार्मूले वैलिड नहीं होंगे. And I agree, whole and all whole system is totally accelerated, and which is accelerated by the gravity. So याद रखना कि if we all these things in accelerated motion. अब आइए थोड़ा सा, अब जब when we think about the rotational motion, moving body, so क्या होगा जब कोई बॉडी मूव करती है, तो अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन कह रहे हैं कि इनका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो तो ओमेगा इज कांस्टेंट. भैया आप जानते हो, फर्स्टली प्रीवियस वीडियो यू कैन सी अल्फा इज इक्वल टू यू राइट डी ओमेगा अपॉन डी टी, हम पढ़ा चुके हैं. अगर ये 0 होगा सो दिस विल बी, सो 0 इंटू डी टी बराबर डी डब्ल्यू. इंटीग्रेट कर दीजिए, वी विल गेट डी डब्ल्यू मिल जाएगा, वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा देन ओमेगा विल बी कांस्टेंट. dt 0, अल्फा 0, dt मल्टीप्लाइड ओमेगा, ये ओमेगा कांस्टेंट. तो अगर ऐसा होगा तो ये फार्मूला यूज होता है. ये सब फार्मूले तभी मिलेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा 2 तभी मिलेगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, एंगुलर एक्सेलरेशन 0. वी विल गेट थीटा इक्वल टू ओमेगा. लेकिन यदि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 ना हो, कांस्टेंट हो, बस एक ही केस है, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ, तभी ये वैलिड करेगा. कुछ न कुछ होगा, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये फार्मूला लगेगा. याद रखिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इफ एक्सेलरेशन एंगुलर रिलेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, अदरवाइज वी विल नॉट अप्लाई दिस फार्मूला. ये फार्मूला वैलिड नहीं है, तभी वैलिड है जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट. तो दिमाग में रखना है कि द वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, फिक्स हो, बदल भी ना रहा हो, बात समझ रहे हैं, और 0 भी ना हो. ठीक है, आइए बात करते हैं तो क्या है. हम जानते हैं, हम आपको बताया शुरुआत में कि फ्लूइड टू वेलोसिटी, 2 वेलोसिटीज हैं, एक है u और एक है v. रोटेशनल मोशन में इट विल गेट ओनली 2 वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. एंड व्हाट विल बी इट्स एवरेज, ओमेगा एवरेज बराबर हो जाएगा बेटा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2. वी विल गेट दिस वन. देख सकते हैं आप, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगा है ओमेगा टी, dt है, dt कैंसिल हो जाएगा, वही चीज, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा टी, ये मिला. अब we will know that v minus u, तो आप जानते हैं कि बॉडी जो है, बॉडी इज मूविंग, फाइनल वेलोसिटी जो ओमेगा 2 एंड इनिशियल वेलोसिटी जो ओमेगा 1. एक्सेलरेशन इज अल्फा इन रोटेशनल मोशन, सो यहां कह सकते हो here you will write omega 2 v2 minus v1 and omega 2 minus omega 1 divided by t is equal to alpha. ये t इसमें मल्टीप्लाइड होगा, ये चला जाएगा, अल्फा t बराबर ओमेगा t माइनस ओमेगा 1, फिर ये माइनस ओमेगा 1 उधर जाएगा, तो इट विल बिकम
अल्फा टी प्लस ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इक्वल टू अल्फा टी प्लस ओमेगा 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या था? आवर फार्मूला S is equal to children, S is equals to ut plus half at square, सेकेंड इक्वेशन। एक पूछा जाता था क्लास 9 में इसका, क्या पूछा जाता था, इसको प्रूफ करिए। इससे में तो बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इन क्लास 11 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू शुड नो इफ यू आर गोइंग टू गिव द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू शुड नो प्रॉपर्ली वेयर वी हैव टू अप्लाई फॉर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इससे न्यूमेरिकल नहीं आते तो वहां से, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन वैल्यू करता है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी ये लगता है। अब देखिए, अब ये बात सही भी है, कोई भी बॉडी अगर लगातार मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए, उसी तरह से θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सेम फार्मूला। ओमेगा 2 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और लास्ट है ओमेगा 1 u प्लस 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2। अगर ये तो सब सही है, बट आपको सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट है वो थे इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। हमने बताया शुरुआत में, पूरी कहानी इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे कांस्टेंट है तो ये अप्लाई, कांस्टेंट नहीं है तो अप्लाई। then above equation are not applicable, I should write here application I have written, तो applicable, applicable नहीं है, टीवी देखने वाला डायरेक्ट आंसर। so omega is equal to beta theta upon, ये तो नेचुरल है, डिस्प्लेसमेंट अल्फा इज इक्वल टू ये, एंड द लास्ट वन यहां पे बहुत नेचुरल लगता है, तो फाइंड आउट। सो चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। रोटेशनल मोशन तभी होता है जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, दैट मस्ट बी कांस्टेंट, दैट मस्ट बी आर यूज्ड, दैट मस्ट बी कम, देन वी आर दिस एप्लीकेबल, अदरवाइज दिस विल बी नॉट एप्लीकेबल। सो रिमेंबर, इसमें लीनियर मोशन में u v और s और t है, सिमिलरली सेम फार्मूला यहां भी एप्लीकेबल है, बस इसमें एक्सेलरेशन वेरी करता है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो रोटेशनल मोशन में लगाइएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल फार्मूला लगा के अपना काम चलाइएगा। सो चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टुडे। थैंक यू, बाय बाय।